Good morning. Today we will study chapter 5 using library class. However, we have been using library classes from beginning. First we discuss on library classes. What is library classes? Library classes are predefined and precompiled classes grouped under various Java packages. Example of library classes are system class, maths class, string classes, wrapper classes, etc. In this chapter, we have to study about wrapper classes. In java.lang package, there are 8 wrapper classes, a wrapper class for each primitive data type. For example, byte, short, int, long, float, double, char, boolean, and for each primitive data type there is a wrapper class. Here name of primitive data type and wrapper classes are almost same, only the first letter of each data type is in capital letter in wrapper classes, and for int and char integer and character is used. So it is almost the same. Uses of wrapper classes. In Java, everything is as object, used as object, except primitive data types. Wrapper class enables a primitive value to be used as object. And the second thing, we can convert a primitive data type to another primitive data type. But sometimes we need to convert as a string or from string to primitive data type. This facility provided by wrapper classes. As simple object creation, we can create the object of wrapper class like this. Integer is the name of wrapper class, obj1 is the name of object equals to new integer, and inside the parameter we use the value of n. In same way, we can pass an string object also that contains the digit. नाउ कॉमन मेथड ऑफ न्यूमेरिक रैपर क्लासेस. सबसे पहले देखें कि नॉन स्टैटिक मेथड्स कौन कौन है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं. तो टाइप वैल्यू, यहाँ टाइप की जगह हम इंट, फ्लोट, डबल जो चाहें लिख सकते हैं, तो उसी डेटा टाइप में वो कन्वर्ट कर लेगा. जैसे कि अगर हम यहाँ इस एग्जांपल को देखें, ऑब्जेक्ट वन डॉट इंट वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर है उसको इंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये रिटर्न करेगा. और ठीक सेम इसी तरह से अगर हम यूज़ करते हैं फ्लोट नंबर इक्वल्स टू, देन ये फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको जो भी वेरिएबल में चाहे हम स्टोर कर सकते हैं. टू स्ट्रिंग मेथड ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, किसी भी न्यूमेरिक फॉर्म से हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होने वाला था. अब स्टैटिक मेथड हम डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, जैसे पार्स टाइप. हेयर टाइप की जगह हम लोग यहाँ पर इंट, फ्लोट, डबल कुछ भी लिखेंगे. इंटीजर डॉट पार्स इंट 23 जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये क्या करेगा, इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक इसी तरह डबल डॉट पार्स डबल, हम जो कुछ भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं लेकिन वो डिजिट ही होना चाहिए, और उसको वो कन्वर्ट कर देगा डबल फॉर्मेट में, डबल डेटा टाइप में, और वाई में इसको स्टोर कर दिया. इसी तरह से वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, ये हम डबल के साथ यूज़ करेंगे तो डबल का वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट के साथ यूज़ करेंगे तो फ्लोट का वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर हम इसको इन्वर्ट यूज़ करें इंटीजर के साथ तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. यानी ये किसी भी स्ट्रिंग से रैपर क्लास में कन्वर्ट करेगा. टू स्ट्रिंग, अगेन हम स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो टू स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे. Now boxing and unboxing in wrapper class. Conversion from a primitive type to object is known as boxing, and when it is done automatically then it is known as auto boxing, and its opposite when conversion is from an object to corresponding primitive data type, that is known as unboxing.
For example, integer object I equals to new integer 45. Here 45 is primitive data type that is converted into object. So it is auto boxing. And in this example, int I equals to object dot int value. In this case, the content of obj is converted into int data type. So it is unboxing. Above conversions are done automatically now in Java. For example, if we create a variable int val equals to 10, then we can assign it in an integer object, integer iobg equal to val. Automatically, the primitive value is converted into object, and its opposite, the value of an object is converted into primitive data type, that is known as unboxing. Character wrapper class is used for character data type. यह इज, लेटर, इज डिजिट एंड जितना भी इज से शुरू होने वाला जो जो फंक्शंस देख रहे हैं सब जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. इज लेटर चेक करके बताएगा कि गिवन कैरेक्टर लेटर है कि नहीं है. इसी तरह इज डिजिट डिजिट है कि नहीं है. लेटर या डिजिट कोई भी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा. इज लोअर केस ये चेक करके बताएगा कि वो लोअर केस में है कि नहीं. दैट मीन्स स्मॉल लेटर में है या नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, बूलियन वैल्यू इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर एंड अंडर ब्रैकेट ए. तो ये चेक करके बताएगा जो ब्रैकेट के अंदर डाटा है वो क्या लेटर है यानी अल्फ़ाबेट है. अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा. इसीलिए इसको हम लोग बूलियन वेरिएबल में रखे हैं. ठीक इसी तरह से इस डिजिट 3, अब ये 3 एक डिजिट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा कि दिया हुआ है बगल में कि ट्रू रिटर्न करेगा. इसी तरह से जितना भी चेक करने वाला है सब में लोअर केस चेक करके बताएगा कि अगर स्मॉल लेटर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, कैपिटल लेटर होता तो फॉल्स रिटर्न कर देता. और इसी तरह से हम लोग ये अपर केस का यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लेटर के लिए, और लोअर केस का यूज़ किए थे. और इसी तरह वाइट स्पेस है या फिर लोअर केस से हम लोग स्मॉल लेटर को चेक कर सकते हैं अपर केस. लेकिन यहाँ पर दो और फंक्शन है, टू अपर केस एंड टू लोअर केस. इन दोनों का यूज़ कन्वर्ट करने के लिए होता है. स्ट्रिंग जो है वो इसमें हम लोग एक चार ऐड फंक्शन का यूज़ करते थे स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को लेने के लिए, खास करके स्कैनर में. तो चार ऐड इंडेक्स नंबर डाल के हम स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर का पोजीशन निकाल सकते हैं. 0 फर्स्ट इंडेक्स नंबर के लिए होता है. जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें, एक स्ट्रिंग कंप्यूटर ले लें, तो कंप्यूटर डॉट 4 ऐट 0 तो फर्स्ट लेटर सी रिटर्न करेगा. और वहीं अगर 4 ऐट 1 करेंगे तो ओ रिटर्न करेगा. और इंडेक्स नंबर में अगर हम 7 डाल देंगे तो लास्ट कैरेक्टर आर रिटर्न करेगा. तो जो इंडेक्स नंबर डालेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो हम किसी भी स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निकाल सकते हैं. ये काम है इसका. एंड अगर डबल इक्वल्स टू का साइन हम लोग जैसे कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डबल इक्वल्स टू प्रिमिटिव के लिए यूज़ होता है. यहाँ हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा इक्वल्स मेथड. जैसे हम लोग दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिए हैं तो ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2 ये सही प्रोसेस नहीं है. ये दोनों का रेफरेंस चेक करेगा, न कि दोनों के डेटा को चेक करेगा. तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे. ऑब्जेक्ट 1 डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट 2, तो ये आके चेक होगा. अब यहाँ एक प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं कि कैसे कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल लेटर है तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे. इस प्रोग्राम को समझिए कि इसमें कैसे कैपिटल को स्मॉल कैपिटल करेंगे. यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनर इज इम्पोर्टेड. आफ्टर दैट class is created, public static void main, scanner is created, and now enter a character char ch equals to sc dot next char at 0 to receive a character only. Now the entered character is stored in ch variable. By using wrapper class, we are going to check if character dot is uppercase ch. That means if this function returns true,
when this function will return true when ch is in capital letter. Then this message is display character dot to lowercase ch. That means in case of capital letter it convert it in a small letter. Else, that means this is not true. Then it convert in capital letter. For example, if we run this program, output 1. If you enter a character in small f, then it returns in capital F, and if we enter a character in capital F, then it returns in a small f. So you can see the usage of wrapper classes, character wrapper classes, and other numeric wrapper classes. You can try to solve more questions by using your book. Thank you.